everyone. Do you have oily skin or a dry skin? What about your acne? What to do with the acne? What do I do if I get wrinkles very, very early? What about the itchy, red and dry skin? What are those? Is there any kind of serious problem? Do I have to manage it now? And what about other things, having white patches, psoriasis and so many n number of skin disease? Well, I know these are your questions, but let me tell you one thing today. By the end of today's episode, you are going to get all the answers. So stay tuned, watch the episode to the end. Reproductive health. So we heard that how IVF and various things are helping the parents who want a healthy baby, and there are so many other things also involved in bringing that beautiful child in the world. But let's speak about then how the nutrition plays, what is the nutrition's role in reproductive health, both about male and female, what foods they should eat, what food they should be avoiding, or is any kind of nutrition actually involved? Let us find out those answers from our guest today, Mr. Saurabh. So hi Saurabh, how are you? I'm good. Thank you so much for having me here. Okay Saurabh, so we are discussing about reproductive health in particular today. For that I wanted to ask you, what kind of patients do you get in reproductive health, and what are their problems and challenges? So the most of the common kind of people जो हम लोग के पास आते हैं, जो patients type जो रहते हैं लोग, they are mostly men with lower testosterone issues. As you see, the normal range of testosterone in male is like 270 to 1070. अभी देखोगे तो if someone is said to be having a normal testosterone level, someone having a 300 levels of testosterone is also normal, someone having a 1000 level of testosterone is also normal. Okay. But that's not how it usually happens, right? Okay. It's not very common, but various men, due to the current lifestyle issues and a lot of having smoking, drinking, less of physical activity and the current dietary habits, टेस्टोस्टेरोन लेवल उनकी बॉडी में बहुत जल्दी गिरना शुरू हो जाता है. सो वैसे पेशेंट्स आते हैं तो उनके केसेस में इट ऑलवेज वर्क्स अराउंड विद गेटिंग देम टू डू समथिंग, स्टार्टिंग विद बेसिक्स ऑफ some amount of physical activity and improving their diet and making it much more cleaner and reducing any sort of toxic materials. कुछ भी अगर toxic material उनके बॉडी में जा रहा है, जैसे हम स्मोकिंग ड्रिंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, वो उनकी डाइट से, उनके डेली लाइफस्टाइल से हम जितना हटा सकें उतना बेहतर रहता है उनके लिए. In the case of female, of course we do face a lot of issues with them, but the most common and जो almost if you say pick 5 girls, at least 2 or 3 of them would have this issue, is either the issue of PCOS or PCOD. Oh yeah. वो बहुत ही कॉमन है आजकल के लिए. इसको इतना कॉमन बना दिया गया है दैट इट्स लाइक हाँ हर दूसरे तीसरे को हो ही जाता है. बट दैट्स नॉट द रियलिटी हाउ इट शुड बी. आप एक हेल्दी इंडिविजुअल, एक हेल्दी लाइफ आप जीना शुरू करते हो तो वहाँ पे भी अगेन आप इसको एक लाइफस्टाइल डिजीज़ या लाइफस्टाइल इशू की तरह लेबल कर देते हैं. दैट्स हाउ द एंटायर इंडस्ट्री हैज़ लेबल्ड इट एंड दैट्स व्हाट इट इज़, बिकॉज इसका ट्रीटमेंट वैसा है, इसका लुकआउट वैसा है कि अगर आपको PCOS या PCOD से अपने आप को बाहर निकालना है, अपने बॉडी के हार्मोनल इश्यूज़ को नॉर्मल करना है, आप अपने लाइफस्टाइल हैबिट्स को, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारिए, आप फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करिए, आप अच्छी डाइट लीजिए, वही एस्पेक्ट्स हमारे तरफ ज़्यादा आते हैं. Actually very well said Saurabh, because lifestyle disease is of course PCOD and PCOS, जो कि बहुत सारे youngsters, people who are in early 30s are facing a lot of challenges and which eventually are leading, इसकी वजह से उनको like reproduction issues होते हैं. And also you spoke about how male उनके testosterone थोड़ा hormonal imbalance होता है उनको, जिसकी वजह से also they face a lot of challenges. So how do you let's say अगर आपके पास patients आते हैं ऐसे कि हमारे को they want to work on their reproductive health, so how do you guide them? आप उनको वर्कआउट बताते हो, आप उनको डाइट वगैरह बताते हो. सो आप एक थोड़ा सा हमें जस्ट बताएंगे कि क्या एक PCOS की फीमेल को एंड क्या एक मेल जो कि हेल्दी अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, व्हाट दे शुड हैव एंड व्हाट ऑल दे शुड अवॉइड, एंड इज देयर एनीथिंग कुछ पर्टिकुलर जो उन्हें एब्सोल्युटली लेना ही लेना चाहिए या करना चाहिए?
इसका आंसर देने से पहले एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, चीज़ लाइट पे लाना चाहूँगा, दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ या फिर मैंने जो इश्यूज़ बताए, जो लाइफस्टाइल इश्यूज़ बताए, वुमेन आर यूजुअली मोर अवेयर कि दे हैव PCOS और दे हैव PCOD बिकॉज उन्हें सिम्टम्स बहुत क्लियरली दिखते हैं, इसलिए इट्स अ वेरी कॉमन सिम्टम एंड लाइक ये इसमें सिम्टम हो सकता है, दे गो फॉर अ ब्लड टेस्ट एंड इट्स कन्फर्म्ड. इन द केसेस ऑफ मेन इट इज़ अ कंप्लीट ऑपोजिट सिनेरियो. अक्सर मर्दों को पता ही नहीं होता है कि उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो रखे हैं एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट. वो जस्ट रहते हैं दैट आई एम लिटिल लेजी एंड दे सी लाइक हाँ मुझे लाइक कुछ आई कुड डू समथिंग विद माई प्रोडक्टिविटी, मैं कुछ और चीज़ें कर सकता हूँ. वो एक अलग तरीके से इसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं, बट दे डू नॉट सी कि लाइक हाँ इसको एक प्रोफेशनल वे में हैंडल किया जा सकता है. I know, and also men are little ignorant, I'll say that. Women are more aware of, what's going around and inside them. And also how it is being educated and propagated to people about कि like आपको क्या रहता है. Women's health को काफ़ी seriously लिया जा रहा है अभी, right? I'm not saying that men's health को उतना seriously नहीं लिया जा रहा है, but awareness उतना ज़्यादा spread नहीं किया जा रहा है. But coming on to your answer that how do we tackle them? The first and foremost thing is that to understand and let them go for a blood test. कुछ सीरीज ऑफ ब्लड टेस्ट होते हैं जो उन्हें हम करवाते हैं, इंक्लूडिंग द विटामिन लेवल्स, इंक्लूडिंग द टेस्टोस्टेरोन लेवल्स एंड इफ इन केस ऑफ फीमेल दैट योर थायराइड हार्मोन लेवल्स एंड एवरी सिंगल थिंग. उन सब चीज़ों को हम लोग एक टेस्ट लेते हैं एंड देखते हैं कि डिफरेंसेस कहाँ हैं. एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन रहती है हर इंडिविजुअल में, विच इज़ लाइक आई एम प्रीटी श्योर बहुत जल्दी, जस्ट सेइंग बट बहुत जल्दी से पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, विटामिन डी डेफिशिएंसी. Oh yeah. That's a huge one. That's a huge one. Yeah. We see it very commonly. जब भी हम people say that नहीं है, but when we make them go through a blood test, they just like oh my god ये कैसे हो गया? Yeah, absolutely. So it's a total a moment of alas for them कि like ये कहाँ से आ गया. तो हम उन चीज़ों पे पहले काम करते हैं, we just understand कि हमारा starting point कहाँ है. A lot of men also have a very different lipid profile जिसकी वजह से obesity भी काफ़ी बड़ी रहती है. BMI को काफ़ी हद तक डिमोनाइज कर दिया गया इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जहाँ पे मैं काम करते हैं यूजुअली. बट कमिंग टू द जनरल पॉपुलेशन जहाँ पे हम जनरल लोगों के साथ बात कर रहे हैं, BMI इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड obesity plays a very important role in reproductive health, especially in male. Exactly. I mean, speaking about obesity, which is of course it's a outside sign जहाँ की बहुत सारे अंदर आपकी बॉडी में बहुत कुछ चल रहा है. It can be hormonal imbalance. It can be underlying cause of any hidden disease. So one definitely needs to work on it. कि पहले तो आप ये पता लगाइए कि आपकी बॉडी में चल क्या रहा है. So blood work gives you an actual result. And आपने जो बताया विटामिन डी का, in fact कई सारे पेशेंट्स हमारे होते हैं कि वो कहते हैं विटामिन डी हमारा ठीक है एंड एक्चुअली 2 महीने 3 महीने पहले उनका जो रिपोर्ट होता है उसमें ठीक दिखाता भी है, बट सडनली आफ्टर 3-4 मंथ्स बाद जब उनको थोड़ा एक्सट्रीम वीकनेस लगने लगती है और वट एवर रीजन जो विटामिन डी के डेफिशिएंसीज के सिम्टम्स है, एंड जब हम ब्लड टेस्ट उनसे दोबारा करवाते हैं उनमें क्लियर कट डेफिशिएंसी दिखता है. विटामिन डी इतना स्ट्रांगली फ्लक्चुएट होता है इन at this situation, at this current day right now, that and actually vitamin D को कहा भी गया it's the cascade of the hormone, although it is said to be a vitamin, but it works like a hormone because it controls all the other hormones, whether it is your testosterone, the hormones related to the PCOS, PCOD, anything and everything, including thyroid and absorption of so many other vitamins and minerals as well. Absolutely. So let's say कि आपके पास ठीक है आपने ये पता लगा लिया कि उनकी vitamin D level low है या फिर their omega 3 is low or any other deficiency if you figure out, then how do you work with the patient? The first thing is that to understand their lifestyle after this. What kind of individual they are. Are they a working professional or they are a student or they are a housewife or what kind of lifestyle they live. Physical activity कितनी है उनकी, वो कितनी बार बाहर जाते हैं, वो कोई physical activity exercise करते हैं या नहीं करते हैं. अगर नहीं करते तो सबसे पहला aspect रहता है तो incorporate some sort of physical activity into their life. And अगर करते हैं तो फिर हम उनका nutrition check out करते हैं. Various methods हैं वो करने का, या तो हम 24 hour recall method करते हैं या फिर उन्हें एक food diary maintain करने को कहते हैं 1-2 दिन के लिए, जिसमें वो record करते हैं कि वो क्या क्या खाना खा रहे हैं 1-2 दिन के लिए. एंड उसे हम असेस करते हैं कि ये अगर आपकी एवरेज डाइट है तो इसमें क्या क्या लैक कर रहा है. तो once we get that data, we intervene and we make certain changes into their dietary lifestyle to understand कि हम natural food से किन किन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, और जहाँ हमें लगता है कि यहाँ पर food is being insufficient,
एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ सप्लीमेंट वुड बी हेल्पफुल. हम वहाँ कोई ना कोई सप्लीमेंट रिकमेंड कर देते हैं उन्हें, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट कैसी रहती है उनकी. Exactly. So, I strongly definitely believe in supplements for myself, and because ये देखा गया है डाइट से कई बार आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो पाती. So in fact for the people who are actually looking to improve their reproductive health, और let's say कि general health improvement के लिए भी I think reproduction का अगर बात की जाए तो for the females folic acid, vitamin D, vitamin B complex, various kind of omega 3 and there's selenium, there's zinc and so many छोटे minerals and vitamins है जो कि हम generally अपने खाने में because let's say आजकल जो lifestyle है we are running around, we are doing so many things and we are doing so many kind of diet, कभी intermittent कर रहे हैं, कभी keto कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, and we tend to eat whatever is available if we are working professionals. So definitely the lack of vitamin and minerals, which is the biggest drive to keep your health maintained, exactly, वो ज़रूर lack होता है. And because of this, the repercussions are that eventually people face different issues, whether it is diabetes, thyroids, reproductive issues, or imbalance in hormone, PCOS, PCOD, and ample number of things. That's why you call it a lifestyle disease, because ये एकदम से नहीं आता. ये आपने धीरे धीरे अपने खाने में जो changes किए हैं, आपको minerals, vitamins नहीं मिल रहा, body भी कब तक defense mechanism अपना काम करे. So after a certain point your body starts showing these symptoms. So सौरभ, अगर PCOS की बात की जाए, so आप एक PCOS के पेशेंट का लाइफस्टाइल मैनेज कैसे करते हो? उन्हें किस तरीके की वर्कआउट करनी चाहिए, उन्हें किस तरीके का डाइट करना चाहिए और क्या खाना चाहिए उन्हें? इन दीज केसेस कुछ मैजिक नहीं रहता है. देयर इज नो स्पेसिफिक मैजिक आउट देयर. देयर इज नथिंग लाइक इसके लिए कुछ हम अलग फूड आइटम या लेंगे. हम कोई एज आई मेंशन अबाउट लाइफस्टाइल डिजीज, सो वी जस्ट ट्राई इंप्रूविंग देयर लाइफस्टाइल. उनके लाइफस्टाइल में अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी हम इंप्रूव कर दे, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, या उन्हें जो पसंद आए जिसमें वो ज़्यादा इंजॉय करें, जिसको वो कंटिन्यू कर पाए ज़्यादा लंबे समय तक. पीपल ऑफ्टन स्टार्ट व्यूइंग इट एज अ सोर्स ऑफ मेडिसिन, एक्सरसाइज को वैसा नहीं देखना चाहिए. इट्स अ काइंड ऑफ लाइफस्टाइल व्हिच यू नीड टू कंटिन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. आपको वो अक्सर करते रहना चाहिए टू कीप योरसेल्फ हेल्दी. तो कुछ ऐसा प्रोबेबली इट कुड बी प्लेइंग अ स्पोर्ट और गोइंग फॉर वॉक और स्विमिंग और in a very nice scenario gymming or going to exercise and lifting weights. That can be very helpful for a lot of women. वो incorporation के बाद we just try incorporating a lot of all the diet rich in all sorts of nutrients that we're trying to give them. A proper balanced diet is what we're looking for. If you look at average Indian diet, what we mostly lack is protein. And alongside protein, if we get the protein is coming from a lot of unhealthy sources. Right. Either it is through the chicken curry, or it's through biryani, or it's through burgers or pizzas. Right? The sources are not healthy. Those are not the healthiest way to incorporate a protein. Recommending them good sources of protein, which could be any food. If you start cooking food at home, it's cleaner, it's healthier, and it's much better for you. So थोड़ा protein incorporation alongside giving them good amount of fats. आपकी बॉडी को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स दोनों की ज़रूरत है, जैसा आपने ओमेगा 3 का मेंशन करा. सो उसका इंकॉर्पोरेशन रहता है, गिविंग देम गुड अमाउंट ऑफ आयरन, विटामिन सी का इंकॉर्पोरेशन, गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड जूसेस, वेजिटेबल्स. हर एक चीज़ का एक अच्छा खासा मेल रहता है. इट्स अ वेरी बैलेंस दैट आई टॉक अबाउट. यूजुअली हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, जब भी होता है उनका, जब हम फर्स्ट पर्सपेक्टिव जो हम देखते हैं इज दैट कि अंडरस्टैंड कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है. आफ्टर टेस्टिंग वो ब्लड टेस्ट, उनके रिपोर्ट्स कैसे आ रहे हैं, टू अंडरस्टैंड द स्टार्टिंग पॉइंट. सो जब हमें पता चल गया उनकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल क्या है, क्या वो एक ऑफिस गोअर है, क्या वो एक स्टूडेंट है, क्या वो एक हाउस वाइफ है, या उनकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल कैसा है, वो जिम जाते हैं या वॉक्स पे जाते हैं, बिकॉज पीपल यूजुअली डू दैट. वंस वी अंडरस्टैंड दैट, वी सी दैट वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे. तो अगर कर रहे हैं तो उसे बेटर करने की कोशिश करते हैं, या अगर नहीं कर रहे तो प्राइमरीली उसे इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं, कोई अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. उसके बाद वी ट्राई टू असेस देयर डाइट, कि उनकी डाइट कैसी है. सो इसके 2-3 मेथड्स होते हैं. या तो हम 24 आवर रिकॉल मेथड लेते हैं, जहाँ हम उन्हें बैठ के पूछते हैं कि आपकी डाइट कैसी रही, पिछले 24 घंटे में आपने क्या क्या खाया.
और एल्स वी गिव देम अ डायरी टू मेंटेन फॉर एटलीस्ट कपल ऑफ डेज टू सी कि उन्होंने पिछले 2 दिन में क्या खाया, टू अंडरस्टैंड एवरेजली उनकी डाइट कैसी है। राइट। यूजुअली व्हाट वी नोटिस इज दैट ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट नहीं होती है अक्सर, एंड अगर होती भी है तो प्रोटीन वहाँ पे बहुत कम रहता है। दैट्स व्हाट वी यूजुअली नोटिस इन लॉट ऑफ इंडियन डाइट्स कि प्रोटीन बहुत कम रहता है वहाँ पर। सो इन चीज़ों को समझने के बाद वी ऑल्सो सी दैट ब्लड टेस्ट के थ्रू तो हमें पता ही है कि कौन कौन से वाइटामिन, कौन कौन से मिनरल्स उनके बॉडी में डेफिशिएंट है। इन सारी ग्राउंड प्लेस को अंडरस्टैंड करने के बाद वी स्टार्ट टू प्रोग्राम द डाइट एंड सी कैसा चल रहा है। एंड हमें जो जो लगता है कि जो जो डाइट से फुलफिल हो सकता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स हमारे तो आ ही जाते हैं, या कोई भी मिनरल्स या वाइटामिन भी हमारे फुलफिल हो पा रहे हैं डाइट से, तो वी डू इट एट आवर बेस्ट। बट अगर वो नहीं हो पाते, वी यूज सप्लीमेंट्स। प्रोटीन के लिए भी वी यूज सप्लीमेंट्स वेरी ऑफ्टन, बट कोई वाइटामिन एंड मिनरल्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ब्रिंग इनटू सप्लीमेंट्स, मैम आपके हिसाब से व्हाट काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स यूजुअली रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए यूज़ कर सकते हैं, और फॉर जनरल हेल्थ भी, अपार्ट फ्रॉम द प्रोटीन सप्लीमेंट दैट मोस्ट ऑफ द पीपल टेक? ओके, सो यू नो व्हेन वी स्पीक अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कुछ सप्लीमेंट्स जो कि फीमेल्स के लिए अच्छा काम करती है, जो कि उन्हें लेना ही लेना चाहिए डेफिनेटली, इज यू नो फॉलिक एसिड, देन देयर इज़ विटामिन डी, सेलेनियम, जिंक, ये सब इनको हम ना माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, बिकॉज इनकी बॉडी में बहुत छोटे मात्रा में इनकी ज़रूरत होती है, बट अगर शरीर में इसकी डेफिशिएंसी हो तो इनके प्रॉब्लम्स बहुत बड़े होते हैं, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, सेलेनियम की डेफिशिएंसी कई बार थायराइड के भी इफेक्ट में, तो जनरली जिनको थायराइड होता है उनको सबसे पहले सेलेनियम से शुरुआत करने को बोला जाता है। सिमिलरली विथ यू नो पीपल जिनके थोड़े से यू नो उनको नर्व्स वगैरह या डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक है, उनको यू नो सप्लीमेंट्स लाइक यू नो ओमेगा 3, जिंक एंड देन मैग्नीशियम, जो कि थोड़ा सा नर्व्स को सूद करता है, ओमेगा 3 जो उनके खाने को बेटर एब्जॉर्ब कराता है। सो यू नो दीज काइंड ऑफ थोड़े बहुत सप्लीमेंट्स उनकी लाइफ में हम धीरे धीरे यू नो उनको सजेस्ट करते हैं कि वाई डोंट यू स्टार्ट विद दिस। एंड एक्चुअली देखा गया है कि ऑल्दो अगर आप एक कंप्लीट मील खाते भी हैं, राइट, बट जो आज का सॉइल है, जिस तरीके से हमारे क्रॉप्स उगते हैं, जिस तरीके से फर्टिलाइजर्स होते हैं, एंड देन यू नो द कोल्ड चेन जिसके थ्रू आता है, जब तक आते आते खाना हमारे किचन में बनता है, यू नो उसमें भी कुछ न्यूट्रिएंट्स लूज होते हैं। सो ग्रेजुअली हर एक स्टेप पे हमारा न्यूट्रिएंट कुछ ना कुछ लूज हो रहा है। आई थिंक इसी वजह से सप्लीमेंट का इतना ज़्यादा क्रेज़ है, इतना ज़्यादा यू नो उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है, बिकॉज अगर यू नो ऑल्दो आई से कि खाने से ही अपना पूरा न्यूट्रिएंट कंप्लीट करें, ऑफ कोर्स सप्लीमेंट तब उस सिचुएशन में लिया जाता है जहां उनकी डेफिशिएंसी हो, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी। ऑल्दो हमारे पास बड़े यू नो कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स भी है, विच इज़ इम्यूनिटी बूस्टर्स है, एंड देन वी हैव अ ब्यूटीफुल सप्लीमेंट विच इज़ अ रियली हॉट सेलिंग वन विच इज़ कॉल्ड हेल्थ रीसेट। सो यू नो it's kind of a food, I'll say. It's not a food replacement, it's food. It's an add-on benefit to your overall health. And ये देखा गया है that you know people have drastically seen changes in their immunity level. You know लोगों के digestion improve हुए हैं, उनकी थोड़ी बीमार पड़ने की tendencies कम हो गई है. So these are certain results which you know a lot of people out there देखा गया that you know they gain these benefits. So yeah, I mean these supplements are actually really important. आप खाने से पूरा करिए या फिर आप supplement लीजिए, but they has to be in your body, आपके होना ही चाहिए. And let's not forget the master supplement नहीं बोलूँगी मैं, master vitamin is you know vitamin D, जो कि that forms the cascade of all the other vitamins. हर किसी का absorption उस पे depend करता है. In fact, calcium is so highly affected with the vitamin D levels. सो या ये तो हो गए सप्लीमेंट्स की बात सौरभ, बट अगर आपके पास पेशेंट्स आते हैं, बोले कि यू नो कि हमारे को अपना स्टैमिना बिल्डअप करने के लिए ओवरऑल यू नो व्हाट काइंड ऑफ वर्कआउट्स दे नीड टू डू, सो आप क्या सजेस्ट करते हो? और लेट्स से यू नो अगर एक कोई लेजी पर्सन है, यू नो लाइक अ लॉट ऑफ लाइक इंक्लूडिंग मी, एंड मेरे को कुछ ईजी वर्कआउट और इफेक्टिव वर्कआउट्स आपको बताने हो, सो व्हाट वुड यू सजेस्ट? एज आई मेंशन, टू अंडरस्टैंड पहले what you like, what kind of physical activity you are into, you were into, वो हम पहले ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या आप क्या आप एंजॉय कर पाओगे. बिकॉज मेरा मानना हमेशा से यही है दैट अगर आप किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते, आप उसको लंबे समय तक कर नहीं पाते, यू आर नॉट एबल टू सस्टेन इट. सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, बिकॉज ये एक्सरसाइज या कुछ ये करना या वेट लॉस कर लेना बोरिंग होने के साथ साथ ये 3 महीने 6 महीने की चीज़ नहीं है. इट्स समथिंग दैट यू नीड टू कंटिन्यू फॉर योर एंटायर लाइफ. सो वो एक चीज़ पहले फिगर आउट करते हैं.
अक्सर लोगों के लिए होम वर्कआउट्स भी काम करते हैं, कुछ लोगों के लिए जिम वाले वर्कआउट्स भी काम करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर गोल्स। मान लीजिए किसी को मसल मास बिल्डअप करना है या किसी को अपना स्टैमिना बढ़ाना है, मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो हम उसके स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे ध्यान देते हैं, हम उसके ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी को बढ़ाने में काम करते हैं, हम शॉर्ट इंटरवल्स में ट्रेनिंग एंड कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिससे उनकी बॉडी की ऑक्सीजन हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ जाए और वो और बेहतर ट्रेन कर सकें और बेहतर आउटपुट दे सकें। मसल मास इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, लीन मसल मास को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, नॉट मेकिंग देम लुक लाइक अ बॉडी बिल्डर, बट उनकी बॉडी में जितना मसल मास बढ़ेगा उनकी बॉडी की काफ़ी सारी चीज़ें हैंडल आउट हो जाती है, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, एंड दैट enables them to eat more nutritious food in a good quantity, leading to higher amount of energy output. तो आपका एनर्जी आउटपुट ऑलरेडी बढ़ गया है, आप ज़्यादा एनर्जी एग्जर्ट कर पा रहे हो, हेंस आप ऑलरेडी काफ़ी लंबे टाइम तक ड्यूरेशन तक आप चीज़ों को हैंडल कर पाते हो, राइट। बॉडी के मसल्स में भी हमारे 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं, टाइप 2 फाइबर्स और टाइप 1 फाइबर्स, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पोर्ट हम उन चीज़ को ट्रेन करते हैं और उस हिसाब से हम ट्रेनिंग करते हैं। तो मान लीजिए मैराथन रनर है जहाँ पे स्टैमिना बहुत ज़्यादा काम आता है, कोई स्विमर है, तो उनका न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग उस हिसाब से प्लान होता है कि हम उन्हें लंबे दौरान तक टू अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हम उन्हें इनेबल कर सकें और ट्रेन कर सकें विदाउट गेटिंग फटीग। अक्सर यूजुअल केस में कार्बोहाइड्रेट आप ज़्यादा देते हैं, हम उन्हें कार्बोहाइड्रेट उस हिसाब से इवेंट के पहले इवेंट के बाद कार्बोहाइड्रेट का हम इंटेक देखते हैं, और मसल मास को हम इस हिसाब से रखते हैं कि मसल्स पानी को होल्ड करें या पानी को छोड़ें और वो एनर्जी किस हिसाब से स्टोर करें। बिकॉज जो मैंने काफ़ी बार लोगों को कहा भी है कि हमारे बॉडी में जो भी आप खाना खाते हो इट इवेंचुअली गेट्स डाउन टू ग्लूकोज। आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट लेते हो, शुगर को हमने इतना डिमोनाइज करके रखा हुआ है, बट शुगर ही आप लो या रोटी लो या कुछ भी लो, इट कम्स डाउन टू ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज आपकी बॉडी में फिर ऑब्जॉर्ब होता है। दैट्स द सिंपल एंड द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर योर बॉडी। आपकी बॉडी एनर्जी वहीं से लेती है। जब वो आपकी बॉडी में हाई है वो स्टोर होता है, आपकी बॉडी उसको स्टोर करती है इन योर लिवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, समटाइम्स इन योर मसल्स, मसल ग्लाइकोजन हमें जैसे कहते हैं। तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये ग्लूकोज भी काम आता है और ग्लाइकोजन भी ग्लाइकोजन को भी वापस बॉडी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, एंड आप फिर उसको यूटिलाइज कर पाते हैं। तो वो स्टोर को हम जितना बढ़ा सकें, आपकी बॉडी को जितना एनर्जी सफिशिएंट बना सके उतना बेहतर रहता है, एंड दैट्स हाउ वी ट्राई टू इंक्रीज योर स्टैमिना व्हाइल डूइंग एनी एक्टिविटी। आई थिंक दैट यू एक्सप्लेन वेरी वेल, पर थोड़े सिंपल वर्ड्स में मैं ये बताना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को कि जो हम खाते हैं वो एनर्जी हमारा स्टोर हो जाता है, एंड जो स्टोर्ड एनर्जी है वो ही इवेंचुअली आप धीरे धीरे रिलीज करते हैं। सो आई थिंक इफ अगर कोई वर्कआउट कर रहा है, कोई एक्सटेंसिव वर्कआउट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उनका वो सोर्स ऑफ एनर्जी उन्हें प्रोवाइड करते हैं। इट कैन बी कार्बोहाइड्रेट, कैन बी प्रोटीन, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ workout they're doing. Yeah. Okay, that was great, Saurabh. You spoke brilliantly and you gave us so much of information about, reproductive health, about protein sources, about, how testosterone work, and then what happens in PCOS, and, what foods to be eaten and how do you plan. That was quite insightful knowledge. I mean, thank you so much, and I hope our viewers get a good information, and I know that you must be taking the notes, so do highlight these pointers and follow it in your routine, and let us know if you gain any benefit from these steps. Sort of the biggest thing, I don't know, सबसे ज़्यादा इंडियंस को प्रॉब्लम होती है प्रोटीन की, राइट? हाँ जी। और हमारे इंडिया में हम वेजिटेरियन बहुत होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, दोनों की क्वांटिटी इक्वल हो गया है आजकल। बट फॉर यू, अगर आपके पास पेशेंट्स आते हैं एंड दे वुड से कि वी आर वेजिटेरियन, व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन सोर्स वुड यू रिकमेंड देम? अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन आपके लिए बन जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। पनीर हो गया, दैट बिकम्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर यू। मिल्क भी आपके लिए अच्छा रहता है, कर्ड और योगर्ट भी रहता है। पीपल माइट वांट टू डिबेट ऑन सोया, कहते हैं सोया इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ, बट नॉट बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन लेवल्स जिसके लिए सोया काफ़ी तक डिमोनाइज्ड है, बट ऑल्सो बिकॉज कि सोया में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंड कई सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स जब आप कुक भी करते हैं तब भी वो नहीं जाते हैं। You might not able to see the impacts of it very immediately, but over the years वो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट देते रहते हैं। तो सोया को हम थोड़ा बहुत के साइडलाइन कर देते हैं। अच्छा। डेयरी कम्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर अस। पल्सेस और हमारे जो रहते हैं लेग्यूम्स वगैरह में जो रहते हैं, हम उनको भी यूटिलाइज करते हैं। तो राजमा हो गए, छोले हो गए, भले ही उनमें कार्बोहाइड्रेट काफ़ी रिच है, बट अगर उन्हें पेयर अप किया जाए, जिन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू ऑफ प्रोटीन, अगर आप दाल और चावल के साथ खाते हैं, रोटी या फिर छोले या चने के साथ खाते हैं,
दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड आपके सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के पूल को फिलअप कर देते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब कुछ साथ में खाना है। हमारी बॉडी, जैसा मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि हमारी बॉडी ये नहीं देखती कि आपने प्रोटीन खाया है, हमारी बॉडी देखती है कि आपने वो जो प्रोटीन के कंपोनेंट्स हैं, जो केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, वो आपकी बॉडी में कैसे गए। जैसे कार्बोहाइड्रेट में वो ये नहीं देखते कि आपने रोटी खाया या चावल खाया, जब एनर्जी लेनी होती है वो ग्लूकोज ही लेता है, राइट। तो आप अपने बॉडी में जब वो किसी भी तरीके से एट अ डिफरेंट टाइम स्पैन वो सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को फिलअप कर पा रहे हैं, आपकी बॉडी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट करती जाएगी। ओके। अब्जॉर्बिबिलिटी में कई जगह दिक्कत आती है, डिपेंडिंग अपॉन कई लोग कैसे डाइजेस्ट करते हैं, क्या करते हैं। सो इन माई सजेशन लोगों का अक्सर यही रहता है कि आप पनीर को रिजॉर्ट कर सकते हैं। फर्मेंटेड सोया प्रोडक्ट जैसे टोफू हो गया या टेम्पे हो गया, वो एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है लोगों के लिए। टोफू इन कंपैरिजन टू पनीर थोड़ा लेस इन कैलोरीज भी होता है, सो वो काफ़ी अच्छा सोर्स बन जाता है। अच्छा। एंड दाल वगैरह तो अपने पास है ही, छोले राजमा अपने पास है ही, उनको हम यूज़ करते हैं। बट अगर आप ऐसे हैं जो इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज नहीं कर सकते, सारी चीज़ें अरेंज करना मुश्किल होता है, प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ करना एक बहुत अच्छा सोल्यूशन बन जाता है आप लोगों के लिए, इन फॉर दोज पीपल। ओके। एंड फॉर मोस्ट ऑफ पीपल, इफ यू डोंट नो, वे प्रोटीन जो होता है वो अक्सर दूध से ही बनता है। हाँ। इट्स मेड ऑफ मिल्क। सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव एन अवर्जन टुवर्ड्स वे प्रोटीन की नहीं लेना है। तो अगर आप वेजिटेरियन है, वे प्रोटीन बिकम्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर यू। अच्छा, सो वे प्रोटीन के मैं थोड़ा समझाना चाहूँगी, वो बनता कैसे। जब आप वो दूध को चर्न करके उसका सेंट्रीफ्यूगल मोशन करते हैं, जिसमें मक्खन निकालने के लिए करते हैं, और फिर इवेंचुअली उससे घी बनता है। सो जो लेफ्ट ओवर पानी है, दैट इज़ द वे। सो या इट इज़ हेल्दी। आई मीन आप उसे स्टोर करें, यू कैन मिक्स इट टू योर व्हीट, यू कैन पुट इट इन योर करी, और लाइक सौरभ इज सेइंग, वन कैन इंक्लूड प्रोटीन पाउडर, वे प्रोटीन पाउडर एट द डेयरी सोर्स। सो यू स्पोक अबाउट दैट प्रोटीन के सोर्सेज, हमारे वेजिटेरियन प्रोटीन के सोर्सेज डेयरी है, विच कैन बी दही, पनीर, एंड फिर देन दालें हैं, वेरियस काइंड ऑफ पल्सेस, एंड देन यू ऑल्सो स्पोक अबाउट दैट नट्स एंड सीड्स। डू यू थिंक लाइक उसका प्रोटीन का क्या, इज इट यूजफुल? नट्स एंड सीड्स, हमें समझना बहुत ज़रूरी है दैट नट्स एंड सीड्स कम एट द कॉस्ट ऑफ अ हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज एंड हाई अमाउंट ऑफ फैट। करेक्ट। आप अगर ये कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स नट्स एंड सीड्स से हेवीली इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, तो यू आर गोइंग ऑन अ एब्सोल्युटली डिफरेंट लाइन, बिकॉज अगेन कैलोरी कंटेंट और फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ऑफ कोर्स यू नीड इट इन सम अमाउंट, बट आप उसे अगर फैट सोर्स देखें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। नट्स एंड सीड्स डू नॉट अमाउंट टू गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन सोर्स। इसलिए आजकल मार्केट में प्रोटीन, ये पीनट बटर को काफ़ी हद तक प्रोटीन सोर्स माना जा रहा है। काफ़ी लोग पीनट बटर को अपना प्रोटीन सोर्स मान लेते हैं, बट वैसा नहीं है। इट्स बटर एट द एंड ऑफ द डे, इट्स फैट्स। सो पीपल नीड टू बी लिटिल कॉशियस, एंड लोग अक्सर देखते भी नहीं है ना। इट्स लाइक प्रोटीन ऊपर लिखा हुआ है, इतने ग्राम प्रोटीन, उसके नीचे का नहीं पढ़ते, नीचे का बिल्कुल नहीं पढ़ते, बिल्कुल नहीं पढ़ते। You are right. In fact, nuts and seeds, I mean sometimes people eat bowl full of, so वैसा नहीं खाना चाहिए. Maybe you can just soak a little bit of 2 to 3 nuts and seeds. Yeah, I mean that kind of quantity is okay. Just speaking about the other sources of protein, so जैसा वर्कआउट करते हैं लोग, एंड देन स्पोर्ट्स पीपल, अ लॉट ऑफ टाइम हम सुनते हैं दैट 12 अंडे खाना है, 26 अंडे खाना है, एंड इट्स रियली, इट साउंड्स वेरी स्कैरी, 26 अंडे, एंड समटाइम्स आई मीन आई हैव हर्ड समबडी ईटिंग 55 एग्स. सो हाउ डू दे कोप अप? उनका फिर लिवर, किडनी, वो सब कैसे काम करता है, एंड कैसे वो डाइजेस्ट करते हैं इतने अंडे? दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट आउट देयर. ये 55 एग्स तो मैंने कभी सुना नहीं, इट्स एन एक्सट्रीम केस, हो सकता है, पॉसिबल है. बट फिर इन बेस्ट के सिनेरियोज आप यहाँ पे ये भी देखो दैट इट्स हाईली सब्जेक्टिव, इट्स वेरी डिफरेंट, बिकॉज हर एक इंसान की बॉडी इतने एग्स डाइजेस्ट नहीं कर पाती है. इन्फ्लामेटरी इशूज़ होते हैं, डाइजेस्टिव इशूज़ होते हैं, एक्ने हो जाता है, पिंपल्स हो जाते हैं, बॉडी इज नॉट एबल टू टेक अप, रैशेज होने लगते हैं लोगों के बॉडी में. Personally, I very often eat 10 eggs a day usually. If I'm going on a good protein diet, the days I want to eat non-veg, 10 eggs a day I can easily manage on 2 different intervals, 4 to 5 eggs at one go, and 4 to 5 eggs at another go. Okay. A lot of people do not eat yolk of it, and अगर आप yolk हटा देते हो, सिर्फ egg white, on an average, a normal egg white is just 17 calories. Just 17 calories. And आपको somewhat around 4 grams of protein मिल जाता है. बॉडी के ऊपर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है. आप अगर कई बार ऐसे देख रहे हो, जैसे मैंने बात किया वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में, अब जो मैंने कहा that is highly dependent on dairy. Highly dependent on dairy. Whey protein भी dairy source ही है at the end of the day.
आप वहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, a lot of people are lactose intolerant. A huge population is lactose intolerant. And not even aware of it. And are not even Yeah, aware of yeah. it. And those who are not even lactose intolerant, the hormonal issues due to the amount of egg, kind of milk that we're getting in the market, that causes a lot of pimples in the body, lot of inflammations. उनके साथ उनको बहुत issues हो जाती हैं. So वो क्या करें? उनके लिए eggs become a very good source. अगर आप eggs को अच्छे से lay out कर पा रहे हो, एक अच्छे amount में खा रहे हो, I don't think so that becomes an issue. Of course, 25 to 30 eggs or 50 eggs is overkill. किसी को उतना नहीं खाना So चाहिए. is there a better way to digest an egg? You know, what do you think about the enzymes like pineapple या फिर और भी आजकल probiotic, prebiotics हाँ जी, आते हैं. हाँ जी, So हाँ जी. does it help to digest the source of protein in a better way and absorb the amino acid out of it? Absolutely, absolutely. आप अगर कोई भी प्रोबायोटिक ले रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप प्रोबायोटिक अगर कभी लेना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर कर्ड. आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, सप्लीमेंट्स इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स, बट कर्ड, हैविंग कर्ड विद एवरी सिंगल मील वर्क्स वेरी फाइन. इसलिए आप कई बार देखोगे इफ आई हैड बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी या कहीं साथ में रायता साथ में सालन होता है, रायता होता है, दही होता है. अच्छा, that's the trick. वो पहले हमें देते हैं कि हाँ अगर जी, ये हाँ खा जी. रहे हो तो साथ में ये खाओ. तो डाइजेस्ट पहले अच्छे से हो जाता है एंड दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन प्रोसेस ऑफ इट. सो ऑफ कोर्स प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स कैन रियली हेल्प. आप साथ में अगर कुछ स्मॉल अमाउंट में वेजिटेबल्स भी ले लें, विच कैन ऐड अ बिट ऑफ द फाइबर कंटेंट. और अगर आप राइस ले रहे हैं, तो अगर आप रोटी खा रहे हैं तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है. ये काफ़ी हद तक वेस्टर्नाइज्ड कॉन्सेप्ट आ गया कि हमें सलाद खाना है, सैलेड खाना है खाने के साथ, बिकॉज उनके खाने में फाइबर नहीं होता है. बट आवर डाइट इज हेविली फाइबर रिच. दाल चावल, गुड अमाउंट ऑफ फाइबर, रोटी भी. सो उतना वेजिटेबल्स नहीं चाहिए था. आप अगर फाइबर मैनेज कर ले, अपना प्रोटीन है, फैट्स है, आपके प्रोबायोटिक्स आ गए जो आपके डाइजेशन में हेल्प करेंगे. यू हैव अ कंप्लीट प्रॉपर मील आउट देयर. Perfect. I think that's a quite good info out there, that how protein को digest कैसे करें. And then eggs are also a good source, but then you have to watch out, or maybe you can talk to any nutritionist or doctor before inducing 55 eggs. And yeah, I mean we got to know so many ample good source of vegetarian protein as well. In fact, the famous documentary Game Changers, if you are looking for to understand more about vegetarian sources of protein and how it works, you might want to watch that documentary and let us know if you like that, or if you want to know any other tips regarding any diet or nutrition, just let us know. Thank you. Hi, welcome to Dr. D's cooking session. So, as you can see, I've got a lot of colorful fruits today and some milk, some, nice chia seeds, and we are going to, I'm going to show you a recipe which is very, very good for reproductive health and your overall health as well. So, this recipe, since as you can see so many colors in it, this recipe is called Rainbow Fruit Bowl, and it's one of my favorite recipe also because it's really simple to make it. So let's see what ingredients do we have here. We have chia seed which has been soaked for a couple of hours. So let's take some chia seeds here. Chia seeds are very, very rich source of omega-3 fatty acids, and it has got it has some very, very good fiber you can which you can get it through your food. Now I'm adding some antioxidants, some vitamin C. I know it's sounding very funny, let's just name the fruit. So these are some pomegranates which are rich in antioxidants. I've got some kiwis which are definitely very good in vitamin C, and also it boosts your sleep. So if you are hungry late night, you want to munch something, kiwi is a very, very good option to have because it does help with your sleep as well. Now I've got some grapes which is very good source of resveratrol, as you know, which is good to boost your anti-aging thing. And then I'm going to add some oranges, the good orange color oranges, and this one is a little fancy, it's dragon fruit, which is said to be a prebiotic and a good source of fiber as well. So on top of this, I'm going to add some milk. You can add coconut milk, you can add yogurt, whatever you feel like, and just mix it all. Nice, colorful, and so good for the summer. I just, I can't stop to eat it. Just so tempting.
It looks delicious. I'm sure it's very, very fulfilling as well. And if you want to make it a bit sweeter, you can add some dates. Try it out the way you want. And let me know if you can find some more innovative recipes, inclusive of this or anything else which you want to share, which is really useful for reproductive health. Do let us know. Thank you.